Everybody. Welcome to this webinar. My name is Kashyap, and I am the management head at Amen Health, sorry, Mental Health Amen Foundation. My bad. So tonight's webinar is on the topic of anger management, and we have our speaker, Ms. Afra Arshad, who is also the president of our foundation. Now, just to tell you a little bit about our foundation, we have been working since 2022, and our CEO and founder is Ms. Amen, and we are basically working on providing services on mental health and like therapy services to people for free. And we are also spreading awareness through webinars, workshops, and things like this. So we have three main departments: the clinical psychology department, where we provide services, and we also have our education department, which hosts workshops and webinars for awareness and knowledge for professionals and laymen alike. And we also have our social media department, which is for marketing and our online presence and stuff like that. So tonight's webinar is on a topic that is very close to my heart because I, as a psychologist, work on anger management a lot. So Ms. Afra is going to be our speaker. She is a clinical psychologist and she's a very, very talented individual. And so I'm going to give her the stage and have her speak on this. Assalamu alaikum, Ms. Afra. Walaikum assalam. Can you all hear me? Yes, you're on. So much for the warm welcome. I just want to say I want to apologize in advance because I am having some internet issue. But Miss Kashyap, जैसे ही मेरा आवाज सही से नहीं आ रही है कुछ issue तो just let me know, ठीक है? I will message you. That's fine. All right. Thank you so much. I'm just going to share my screen. Sure, please do. All right. So now we're going to start. Today we'll be talking about anger, and I'm sure that you all are familiar with it. You all are well aware of the term what is anger, and I'm sure आप सब ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कभी इसको फील किया होगा या आप maybe you are familiar with someone आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स में किसी को कोई एंगर इशू हो सकता है या किसी ना किसी का आपने रवैया इस तरह का देखा होगा शायद जिसकी वजह से you have decided to come up and register for this workshop. So thank you so much everyone for registering and for showing up today. I just want to clear this one thing before we start that anger is not a very negative emotion. हम लोग anger को बड़ा negatively perceive करते हैं. The moment we hear the word anger, हमें ये होता है कि शायद ये कोई बहुत ही किसी की कोई कमी के हम बारे में बात करें, किसी की खामी के बारे में हम कोई बात करें. बट देखा जाए तो anger itself, it's a very natural emotion. It's a very healthy emotion because anger is something that keeps you going, that keeps you relating with other people. आप अपने emotions को समझते हैं, दूसरे से शेयर करते हैं. That's a very healthy emotion. प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम तब स्टार्ट होना शुरू होती है व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशन. एंगर, और ये सिर्फ एंगर के बारे में नहीं है कि हर इमोशन के बारे में है. द मोमेंट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, इट्स गोइंग टू कंट्रोल यू. एंड व्हेन इट्स गोइंग टू कंट्रोल यू, इट्स गोइंग टू बी उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. सो जस्ट क्लियर, मैं पहले एंगर की इमेज ठीक करना चाहूंगी, फिर आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद इट. ठीक है? सो आई होप दैट यू ऑल आर फेमिलियर नाउ. एंड हम एंगर को इतना हम बुरा हमेशा बुरा ही समझते हैं, बट एंगर एक हेल्दी इमोशन है. ऑलराइट, जैसे मैंने कहा, एंगर इज अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एवरी अदर इंडिविजुअल. प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम इसको ट्रीट नहीं करते, जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है. Fortunately, we do have amazing, effective strategies how to control it. Or in order to control it, it's important to first understand कि उसके causes क्या है, हमारे क्या triggers हो सकते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से हमें फिजियोलॉजिकली हमें हमारे रिएक्शन आते हैं. मतलब हमें जो बॉडी के जो हमें सिम्टम्स आते हैं, बॉडीली सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमें हेडेक शुरू हो जाती है, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, वी स्टार्ट ट्रेमलिंग. इस तरह के सिम्टम्स को भी रिकग्नाइज करना जरूरी है कि वाई ये कहाँ से आ रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं. एंड ओनली देन वी कैन डेवलप कंस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म. सो व्हेन आई डू थेरेपी, जब मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, तो एंगर एक ऐसा इशू है जो बड़ा पर्सनल होता है. हर एक के अपने इंडिविजुअल कॉजेज, ट्रिगर्स होते हैं, हर एक का इंडिविजुअल वे होता है ऑफ रिएक्टिंग. तो थेरेपी हमेशा इंडिविजुअलाइज ही बनती है. यहाँ पे जो मैं आप लोगों को टेक्निक्स बताऊंगी वो बहुत जेनेरिक सी टेक्निक्स होंगी जो हर हर कोई शायद नहीं रिलेट कर पाएगा, बट कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर पाएंगे. लेकिन
कोई इस तरह की कोई टेक्निक नहीं हो मैं बताऊंगी जो एक जेनेरिक सी होगी जो हर कोई इसको यूज कर सकेगा, बिकॉज एंगर एक बड़ा पर्सनल इमोशन है, हर एक का डिफरेंट तरीका होता है इसको फील करने का। ऑलराइट, प्लीज इसको गौर से देखें, जो मैंने अभी आपको ये जो आपको व्हील नजर आ रहा है बड़ा क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि बिहाइंड दिस एंगर दे माइट बी लॉट ऑफ अंडरलाइंग इमोशंस। दैट एंगर जो है ना, नजर हमें आ रहा होता है सामने, और जो सामने ही सिर्फ हो, इंटरनल कुछ इस तरह के इमोशंस होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो हिडन होते हैं, वो हम नहीं दिखा रहे होते। जैसे कि एंजाइटी कुड बी द रीजन, जिसको हम छुपाना चाह रहे हैं, हम एंजाइटी नहीं दिखाना चाह रहे, और उस छुपाने के चक्कर में वो एंगर की शक्ल में नजर आ रहा है। इफ यू आर हर्ट बिकॉज ऑफ समवन, अगर गिल्ट है आपको किसी चीज का, जेलसी है अगर आपको, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं, तो वो स्ट्रेस को नहीं आप डील कर रहे, वो स्ट्रेस नहीं आप शो करा रहे, लेकिन आप उसको एंगर की शक्ल में दिखा रहे। तो जो आपको देख रहा है वो यही परसीव कर रहा है कि दिस पर्सन इज वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है, वी डोंट ट्राई टू फिगर दैट आउट, हम उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करते कि वेयर इज दिस एंगर कमिंग फ्रॉम। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस एंगर के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स, छुपे हुए फैक्टर्स हो, जिनको देखने की जरूरत है, जिनके बारे में बात करने की जरूरत है। ठीक है, देयर कुड बी अ गिल्ट, देयर कुड बी शेम ओवर सम पास्ट मिस्टेक्स, कोई पुरानी कोई आपने मिस्टेक की है, वो दोबारा बार बार आपको किसी बंदे की शक्ल देख के याद आ जाती है, किसी जगह पे आप जाते हो तो वो रिकॉल आपको मेमोरी हो जाती है, उस मेमोरी को छुपाने के लिए वो एंगर की शक्ल में आप सामने ले आते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एंगर आइसबर्ग का मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन वे ऑफ टेलिंग समवन व्हाट इज एंगर, एंड प्लीज हेयर दिस थिंग वेरी क्लियरली, बिकॉज आप लोगों को अगर ये एंगर आइसबर्ग का लॉजिक समझ आ गया ना, तो आप खुद के गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे के भी गुस्से के ऊपर आप बड़ी अच्छी स्किल्स उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने साथ वाले बंदे का गुस्सा कंट्रोल करें। ऑलराइट, सो एंगर आइसबर्ग बेसिकली शोज अ वेरी क्लियर पिक्चर कि जब हमें समंदर में हमें जब आइसबर्ग नजर आ रहा होता है, तो हमें सिर्फ सामने से नजर आ रहा है कि वो छोटा बर्ग है, बहुत बड़ा बर्ग है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि व्हाट्स हिडन अंडर द सी, राइट? So icebergs are giant floating pieces of ice that is found in the coldest parts of the ocean. What you can see from above is just a tiny part. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द आइसबर्ग इज हिडन अंडर द सरफेस। वही सेम एंगर की शक्ल में इसको दिया गया कि जो आपको नजर तो सिर्फ एंगर आ रहा है, बट अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अब वो क्या है, वो वही है जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है। कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करने के लिए आइसबर्ग का एग्जांपल दिए कि जो सामने नजर आ रहा है हमेशा वो ही नहीं होता, हिडन भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर वी नीड टू टॉक अबाउट। अब आइसबर्ग क्या हो गया, किसी को गुस्सा आया तो वो चिल्लाने लग गया, वो चीखे मारने लग गया, दैट पर्सन हैज स्टार्टेड स्लैमिंग डोर्स, दैट पर्सन हैज स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स। सो व्हाट वी आर सेइंग जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो छुपी हुई इमोशंस है वी आर नॉट एबल टू सी दैट। हमें गिल्ट नहीं हम उसका देख पा रहे, हम उसकी फ्रस्ट्रेशन नहीं देख पा रहे, हम उसका ट्रॉमा नहीं फिगर आउट कर पा रहे, वी आर ओनली लुकिंग एट एंगर। ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी मैं क्लियर करवाना चाहती हूँ कि जब हम कोपिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो वहां पे हम एंगर को डील करने के साथ साथ इन सारे इमोशंस को भी डील कर रहे होते हैं। ये इमोशंस कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं जिनको जो एंगर की शक्ल पे नजर आ रहे होते हैं। When we are angry, there are often other emotions that are under the surface. ठीक है, all right. अच्छा, यहाँ पे I want to give you one example, and then I want all of you to share some examples from your daily life as well. For example, there is someone who is very angry. ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है। गुस्सा क्यों आया हुआ है? Because someone forgot his or her birth. ठीक है, तुम मेरी बर्थडे भूल गई, इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया। अब जो विजिबल इमोशन है दैट इज एंगर। ठीक है, कि ये कैसे मेरी बर्थडे भूल गई। हाउएवर, अब आप ये देखिए बीनीथ द सरफेस क्या है, जो रियल इमोशंस क्या है, दैट कुड बी हर्ट। वो हर्ट क्यों हुआ? बिकॉज वो ये सोचने लग गया कि दैट अदर पर्सन डजंट इवन केयर अबाउट मी। ठीक है, या वो अपना आपको अकेलापन महसूस कर रहा है, दैट पर्सन हैज स्टार्टेड नाउ फीलिंग लोनली, दैट आई एम नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन्स लाइफ। ये हिडन इमोशंस है जिसको वो सामने नहीं लेकर आ रहा, और वो एंगर की शक्ल में आ रहा है कि तुम मेरी बर्थडे कैसे भूल गई। ठीक है, अच्छा, इस तरह की आई वांट सम ऑफ यू, कोई एक या ज्यादा भी अगर बोलना चाहे, कोई अपनी लाइफ से मुझे एग्जांपल शेयर करें कि आप लोगों को अगर कभी किसी बात पे बहुत गुस्सा आया,
ठीक है, वो शेयर करें, और फिर उनका जो हिडन इमोशन था, जो अंडरलाइंग इमोशन थी, वो उसको जरा शेयर करें प्लीज. Is there someone who would like to share? Can I? Yeah, please go ahead. Well, this one time I got really mad when I was in an argument with somebody because they were a friend of mine and they weren't like listening to me, like they weren't hearing me out, and we had some conflicting opinions. So the root of that for me was that I felt kind of disrespected because I felt like we've been friends for so long, so you should at least hear me out. So there was a lot of anxiety around, is this friendship going to end? And that manifested as anger for me this one time. बिल्कुल बिल्कुल सही. So यहाँ पे आपका हिडन इमोशन ये था that you were scared that what if this friendship will end. And Yes. obviously ये इस तरह की थॉट थी that हम शायद ये बात ओपनली नहीं कर सकते कि तुम मुझे कोई छोड़ तो नहीं दोगे. वी कैन नॉट से दैट ओपनली. तो उस चीज को हम कवर कर लेते हैं और वो एक अग्रेशन की शक्ल में नजर आने लग जाता है. बिल्कुल जी. इज देयर एनीवन एल्स हु वुड आल्सो लाइक टू शेयर सम familiar example? I do see a lot of participants. आप चैट में भी लिख सकते हैं if you don't want to say. ठीक है, कोई अपना रिलेटेबल कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो the chat box is always open. All right, I'll proceed now. ये एक वही जो revise your question. All right, so Tasavvur is saying that okay, my question is basically that I want, जैसे मैंने अभी एंगर आइसबर्ग की बात की कि इमोशन, जो हिडन इमोशंस होते हैं, दे आर अंडर. Just asking if कोई अपनी एग्जांपल शेयर कर सकते हैं when you were angry the last time or when you saw someone getting angry, and then can you share कि what was the hidden emotion behind that anger? Alright, और ये एक एक्सरसाइज है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंगर आइसबर्ग एंड मे बी आप जो हिडन इमोशन जो थे वो आप इसके अंडर लिख सकते हैं. दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू कि नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आए तो यू वुड नो कि अच्छा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है. व्हाट आर द हिडन इमोशंस जो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ जिसकी वजह से माय एग्रेशन इज अपसेट. दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव लेकिन एक्सरसाइज जो आप खुद पे अप्लाई मुझे कर सकते आज हैं. गुस्सा आया था बैंक में, बैंक मैनेजर के साथ. तो हिडन इमोशंस ये थे कि मेरा टाइम था, एक बंदे को पेमेंट देनी थी. तो हिडन इमोशन ये थे कि मैं पेमेंट नहीं वक्त पे दे पाया, तो गुस्सा आ गया. बस इस तरह के हम्म. इमोशन थे. हम्म. अच्छा. अच्छा सर, यहाँ पे जो हिडन इमोशन नहीं है, आपने मुझे अभी तक बताया, आपने मुझे वो बताया जो अप फ्रंट था कि मैं इसको पेमेंट नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था. अब यहाँ पे हिडन इमोशन क्या हो सकते हैं कि आपने कमिटमेंट की, वो कमिटमेंट हाँ, पूरी नहीं आप लॉयल्टी कर थी उस पा रहे. बंदे के साथ, मेरा ट्रस्ट था थर्ड पर्सन के साथ जिसके ट्रस्ट लिए. था. जी जी. बिल्कुल, यू वर अफ्रेड कि वो ट्रस्ट ना कहीं टूट जाए. सो दैट वाज द हिडन इमोशन दैट वाज कॉजिंग यू फील एंग्री. और जब हम हिडन इमोशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर उसकी थेरेपी करना या उसको सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है. Alright, thank you so much, Tasavvur, for sharing that in this discussion. Alright, मैम let's मैंने talk आपको about the अपना sources मैसेज of किया है. anger. Acha, let me see. I can't see the message. So you said that I have message because मुझे कोई मैसेज नहीं आया. Let me just continue with the sources. Can you hear me? Yes, we can.
ऑलराइट, आई एम सेइंग कि जिसने भी कहा है कि मैंने मैसेज किया, आई कांट सी द मैसेज, तो आप प्लीज दोबारा से अगर कर दे। ओके मैम, मैं कर देती हूँ। वो अरफा बतूल को सॉरी चला गया था। अच्छा अच्छा, आप प्लीज फिर से मैसेज कर दें। ऑलराइट, मैं आपका मैसेज एंड पे देखती हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ एंगर। ये वही बात है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट दैट what is the main cause, what is the main trigger of your anger, and the more like ये फर्स्ट स्टेप होता है थेरेपी का कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका एंगर का सोर्स क्या है। Now there are two types of sources, one is external sources and the other one is internal sources। ये भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि जो मुझे गुस्सा जो आ रहा है उसकी क्या मैं खुद वजह हूँ, क्या मेरे अपने इमोशन रिफ्लेक्ट नहीं मैं कर पा रहा हूँ सही से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी पे गुस्सा आया तो मुझे ये फील हुआ है कि आई वॉज नॉट बीइंग ट्रीटेड राइट, दैट्स माई ओन पर्सनल इमोशनल रीजनिंग। इस पे हम एक्सटर्नल को कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारा अपना इंटरनल रीजन था, ठीक है। देन वी हैव पीपल रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे से ये मुराद है कि समटाइम्स वी जज पीपल बेस्ड ऑन देयर एक्शंस और वर्ड्स एंड देन वी असाइन नेगेटिव लेबल्स टू देम, ठीक है। जिसकी वजह से हमें एग्रेशन आ जाता है। सपोज हम किसी को जज कर लेते हैं कि ये दैट पर्सन हैज टू बी रूड विद मी, ठीक है, ये हमेशा मेरे से रूड तरीके से बात करता है या बहुत मीन तरीके से बात करता है। सो नो मैटर व्हाट द अदर पर्सन से और डू, वी टेंड टू गेट एंग्री जस्ट बाय लुकिंग एट दैट पर्सन। देन वी हैव अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशंस हम लगाते हैं, ठीक है, समटाइम्स दैट इज हेलो। Sorry, I ऑलराइट, think it was a समटाइम्स जो एक्सपेक्टेशंस, हु इज स्पीकिंग? nothing. I was saying, please continue. It was just somebody's mic ओके was unmuted. ओके ओके। सो ठीक है, हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे। समटाइम्स वी टेंड टू हैव वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस टू द अदर पीपल, जिसकी वजह से अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते तो दैट्स व्हाई वी गेट एंग्री, ठीक है। अब वो जो जजमेंट्स होती हैं कि अगले बंदे ने मेरी चीजें पूरी नहीं की या मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो पूरा नहीं किया, तो वो ऑब्वियसली हमारी जजमेंट्स की बेसिस के ऊपर वी स्टार्ट टू गेट एंग्री। एंड देन देर आर सम पीपल हु हैव अ वेरी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, विच मीन्स कि उनका इनिशियली टॉलरेंस लेवल ही इतना लो होता है कि वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे टेंड टू गेट एंग्री ऑन ओवर वेरी स्मॉल थिंग्स। Then we have external sources. If someone personally attack us या हमें कोई abuse करता है या हमसे कोई बदतमीजी करता है तो definitely there is no way we're going to tolerate that, जिसकी वजह से we starts to get angry. Then we have another external source कि कोई अगर कोई इस तरह की ओपिनियन हमसे शेयर करता है, कोई इस तरह की कोई बात हमसे करता है जो हमारी बात के साथ मीट नहीं करती है, तो उसमें भी हम गुस्सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दो चीजों पे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। जो हमारा इस्लाम भी ये बात हमसे कहता है कि अगर आप किसी बंदे से बहस करते हो जो आपकी बात समझ नहीं रहा है और फिर भी आप उससे बहस करे जा रहे हो, उस पर गुस्सा हुए जा रहे हो, तो अगर वो जाहिल है तो जो दूसरा उससे बात करता है वो भी जाहिल ही कहलाता है। जाहिलों से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि उस बंदे की इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो मेरी बात सुन सके, तो रादर देन आर्ग्यूइंग विद द पर्सन एंड गेटिंग एंग्री ऑन दैट पर्सन, इट्स बेटर टू लेट इट गो। हर बात को आपने जस्टिफाई करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देन वी हैव थ्रेटन नीड्स, ठीक है। ऑलराइट, एंगर कैन डेफिनेटली अकर व्हेन अ पर्सन फील्स कि उसकी जो एसेंशियल नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही, जैसे उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही, फिजिकल नीड पूरी नहीं हो रही या साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही। व्हाट आई मीन बाय द नीड्स कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समवन डू नॉट सपोर्ट यू, किसी के रिलेशनशिप में जो अगला पर्सन है वो लॉयल नहीं हो रहा है, सिंसियर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिजिकल नीड्स है, अगर हमारी जो हंगर नीड्स है, जो हमारी सर्वाइवल नीड्स है, अगर वो पूरी नहीं होती है, देन वी ऑल्सो टेंड टू गेट वेरी एंग्री। तो ये बेसिक नीड्स होती है, इनको अब इस चीज को फिगर आउट करें कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या आज मैंने खाना सही से खाया था, क्या आज मैंने अपना वाटर इनटेक पूरा किया है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर योर शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टेम्पर लोग हो जाते हैं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बिकॉज उनकी डाइट पूरी अच्छी नहीं होती, उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हुई भी होती। एंड देन लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस यहाँ पे भी आ जाता है, बिकॉज एक तो हमारा अपना पर्सनल हो गया कि दैट्स बिकॉज कि हम वी आर फीलिंग वेरी, हमें टॉलरेंट लेवल हमारा कम है।
देन देयर आर अदर पीपल जो अगले बंदे का अगर टॉलरेंस लेवल कम है तो उसकी वजह से फिर हमें गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे इट्स इम्पोर्टेंट टू फिगर आउट कि वो जो बंदा गुस्सा हम पे कर रहा है शायद उसी का ही टॉलरेंस लेवल इतना है ही नहीं कि वो इस बात को समझ सके, तो आई नीड टू टेक अ स्टेप बैक। सो दीज आर द सोर्सेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू रिकग्नाइज सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई, अपने ट्रिगर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और दूसरे के ट्रिगर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे तो ही इस बारे में बात कर सकेंगे। All right, now I want you to share कि आप लोगों के हिसाब से क्या क्या आप लोगों की एंगर ट्रिगर्स है। You don't have to explain in detail, आप बस अपने मुझे ट्रिगर्स बता सकते हैं कि at what time do you guys feel triggered and it makes you feel angry. यार क्या मेरे बकवास ना करें, दूर में कुछ चढ़ाना खाली। Okay. Is there anybody want to share? Yes, किसी I का want चैट to आया हुआ share. है? हाँ जी प्लीज। Actually, most of the time when I get hurt, I used to show anger. मतलब जब मुझे लग रहा होता है कि मतलब नेक्स्ट पर्सन जो है वो बिल्कुल भी एक मतलब एक पॉइंट होता है ना, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया दो लोगों के दरमियान और अगर एक पर्सन का कोई प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया है, इस छोटे से प्रॉब्लम हुआ है और वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो आई यूज टू गेट एंगर। और सेकेंडली व्हेन आई गेट हर्ट तो मुझे बहुत ज्यादा एंगर इशू स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर मोस्ट ऑफ द जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम लोग एंगर शो भी नहीं कर सकते, यू हैव टू सप्रेस इट। तो उन जगहों पर मुझे ऑटोमेटिकली आई यूज टू क्राई बिकॉज नो अदर ऑप्शंस, तो बस यही ऑप्शन होता है जो इंसान अवेल कर सकता होता है इस टाइम पे। एंड आप दूसरी बात करेंगी कि आपको बात नहीं करनी चाहिए उन लोगों से जिनसे आपको लग रहा होता है कि शायद वो आपकी बात नहीं समझेंगे। तो डोंट यू थिंक कि बहुत सी ऐसी जगह पर होती हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए, जहाँ पर हमें पता होता है कि हो सकता है वो हमारी बात ना समझे, लेकिन फिर भी हमें उनको बार बार उस चीज को बताना पड़ता है कि मे बी होप्स हो कि शायद वो समझ जाए, शायद ये जो ट्रिगर्स हैं ये खत्म हो जाए। तो डोंट यू थिंक सो कि ऐसा होता है या ऐसा करना पड़ता है? Definitely, it's up to us that how are we going to deal with our aggression. अगर उसके जो जैसे आपने बताया कि आपका जो अंडरलाइन इमोशन है दैट इज हर्ट, जब आपको तकलीफ होती है, जब आपको पेन होती है तो यू टेंड टू गेट एंग्री, या आप उसको रो के सप्रेस कर लेती हैं, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लेती हैं विद द क्राइम। तो यहाँ पे इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दैट व्हाट्स पिंचिंग यू सो मच, व्हाट इज कॉजिंग यू सो मच पेन दैट इट टर्न्स आउट एज एंगर। वो जो पेन है आपने उसको एक्नॉलेज किया है, आपने उसके बारे में बात की है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, एंड देन वी गोइंग टू डील विद योर एंगर। पहले हमें आपके इमोशन के ऊपर बात करने की जरूरत है। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर इरफान ने कुछ कहा हुआ है, उनका अस्सलाम वालेकुम आया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। आप भी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो प्लीज। Dua Fatma is saying when someone does not listen to me carefully or when someone criticizing me, definitely that can also lead to aggression. जब आपकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है या जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, यहाँ पे हमें सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात करने की जरूरत है कि क्यों किसी और के कहने से आप किसी और के नेगेटिव कमेंट से आप क्यों इतना ज्यादा हर्ट हो रही है, आपको क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। Does part of you also believe that the other person is being true to you? क्या वो सच बोल रहा है इसलिए आपको गुस्सा आता है? क्यों, like what is the main reason behind this criticism? इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। Thank you so much Dua for sharing that. And this is also one of the ways that you can find out your triggers and then work on it. All right, now let's talk about anger suppression. की जरूरत है। जी मैंने कहा है कि मिस दुआ, आपको जो आपने कहा ना कि जब मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है तब मुझे गुस्सा आता है, राइट? तो क्यों किसी और की क्रिटिसिज्म के ऊपर, व्हाई, व्हाट्स कॉजिंग यू एंगर? क्या वो क्रिटिसिज्म समहाउ सच है? क्या आपका उस पर बिलीव है इसलिए आपको गुस्सा आता है कि हाउ कम ही नोज माय वीकनेस? कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? इसका क्या मतलब है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता,
वो आपकी बात को वैल्यू नहीं करता, क्या ये इस बात के पीछे रीजन है? Yes, ma'am, मुझे ये लगता है कि अगला बंदा मेरी बात को वैल्यू नहीं कर रहा। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगला बंदा वैल्यू नहीं कर रहा। वैल्यू नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इट्स इम्पोर्टेंट टू फिगर आउट कि आपकी जो वैल्यू है, क्या आप खुद को वैल्यू देती हैं, क्या आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं? और अगर आप खुद को वैल्यू देती है तो किसी और की आपकी अगर कोई बात नहीं सुन रहा, तो इफ दैट मीन्स दैट द पर्सन इज नॉट वैल्यूइंग यू, सो इट मीन्स कि यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम दैट पर्सन एंड यू नीड टू टीच हिम कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल एंड आई वोंट टेक दैट। ये एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, बट इट नीड्स टू स्टॉप नाउ। ये जो पैटर्न चलता आ रहा है, ये जो साइकिल चलता आ रहा है, दैट नीड्स टू बी ब्रोकन नाउ। ऑलराइट, थैंक यू। यू वेलकम। तसव्वुर इज सेइंग, जब आपकी कोई बेइज्जती करे, जब आपको कोई नाकाम बोले, बड़े इख्तलाबात से पुकारे, बुरे इख्तलाबात से पुकारे। बिल्कुल ऐसे ही है, इन चीज़ों से आपको गुस्सा आता है। और यहाँ पे ये बात जानने की ज़रूरत है कि वो जो बातें कर रहा है, वो हमने उन बातों को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल देना। वी नॉट गोइंग टू बिलीव दोज वर्ड्स, बिकॉज इफ यू स्टार्ट बिलीविंग, दैट्स वेयर एंगर कम्स। ऑलराइट, लेट मी जस्ट proceed. वी आर टॉकिंग अबाउट एंगर सप्रेशन। यहाँ पे किसी ने बात भी की थी कि मैं एंगर सप्रेस कर लेती हूँ, मैं एंगर के थ्रू, एंगर के बजाय रो लेती हूँ। ठीक है, नाउ एंगर कैन बी सप्रेस एंड देन कन्वर्टेड और रीडायरेक्टेड इनटू अ वेरी हेल्थी वे। यहाँ पे हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, कि गुस्से को किस तरह से सब्स्टिट्यूट किया जाए इन हेल्दी इमोशन। इट्स important that when you have realized कि I'm getting angry, what am I supposed to do? Try to do physical activity, start running। ठीक है, आप रनिंग पे चले जाए, यू स्टार्ट जंपिंग, आप जहाँ पे खड़े हैं वहां पे जंप करना शुरू करते हैं, फिजिकल एक्सर्शन शुरू करते हैं, कि जो आपका गुस्सा है वो आपकी फिजिकल बॉडी के थ्रू निकल आए, ना कि किसी और के ऊपर आप गुस्सा निकालना शुरू करते हैं। हम जब गुस्सा रोक लेते हैं या उस चीज के बारे में सोचना शुरू करके किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं, ये तब दैट्स व्हेन यू स्टार्ट सप्रेसिंग योर इमोशन। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नुकसान भी कभी कभी हो जाता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा रोकना शुरू कर देते हैं, उसको बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते, आपका जो गुस्से की डायरेक्शन होती है वो इन्वर्ट शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट हर्टिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट पनिशिंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो मैं गुस्सा किस तरह से मैं निकाल रहा हूँ और क्या वो हेल्दी है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि गुस्सा चीखे निकाल के, किसी को हर्ट करके, चीजें तोड़ के, दरवाजे ठाठा मार के ही गुस्सा निकला जाए। देर आर अदर मेनी पॉजिटिव वेज। स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, लिखना शुरू कर दे। जब तक गुस्सा आ रहा है, 10 मिनट तक गुस्सा आएगा, 15 मिनट तक गुस्सा आएगा, लिखते रहे क्या मैं फील कर रहा हूँ, किस बात पे गुस्सा आ रहा है, क्या क्या करने को दिल कर रहा है। स्टार्ट राइटिंग इट डाउन इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग इट। दैट्स हाउ यू गोइंग टू लर्न कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। All right. Unexpressed anger can also create other problems which can lead to pathological expressions of anger such as passive aggressive behavior. जब आप गुस्सा नहीं सही से निकाल पाते, फिर वो गुस्सा किसी और बेचारे मजलूम के ऊपर निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, किसी पे आप इनडायरेक्ट अटैक आप करना शुरू कर देते हैं, किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं, किसी कमजोर के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा पतंगा बना रहे हैं। दैट्स व्हेन पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर कम्स। के जिस चीज का गुस्सा है वो किसी और पे भी नहीं निकलना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ या तो हेल्दी तरीके से निकले, या आप अपने माइंड को रिवर्ट करें इन अ वे कि यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट इट। और हर चीज पे ब्लेम ना करें कि इसकी गलती है या मेरी गलती है या उसकी गलती है। समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग, इट्स अबाउट कमिंग अप विद सोल्यूशन कि इसका किया क्या जाए। डज नॉट मैटर कि गलती किसकी थी। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। लेट्स एंड दिस एग्रेसिव बिहेवियर राइट हियर राइट नाउ। और कोशिश करें कि इफ यू आर एंग्री एट समवन और विद समथिंग, रात को सोने से पहले ट्राई टू फिनिश दैट अप। उससे या तो बात कर ले या अपना गुस्सा किसी हेल्दी तरीके से निकाल दे, बट मेक श्योर कि वो रात तक ना जाए, उसको दिन में ही खत्म कर दे। All right, now let's talk about the anger styles. अच्छा, I will be sharing 3 to 4 anger styles with you, and then I want कि आप chat box में इसको mention कर दें कि which is your style. The first one is hothead. This way you blame others for your problem. You start crying if you lose. You get very frustrated, and you know that you are angry, but you just don't know how to accept it.
ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, आप दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। ठीक है, इज इट यू, ठीक है, जो भी है वो आप चैट बॉक्स में लिख दें कि हाँ आई एम हॉट हेड, या जो मैं आप या क्या एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, साइज भी आप साथ साथ चैट बॉक्स में लिखते जाओ। Are you a retreater? You sleep when things get bad. When you don't know any problem, you say कि napping is the only way I'm going to find a solution of it. You shy away from risk. आप भागते हैं बड़ी जिम्मेदारियों से, बड़ी चीज़ों से। आप इम्पोर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं। आप प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होना अपने आप को पसंद नहीं करते, क्योंकि आप उस चीज़ से भाग तो गए, बट स्टिल दैट एग्जिस्ट समहाउ, जिसकी वजह से एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। So let me know if you are one of these style. Then we have a con collector. ठीक है, he is that someone जो अपनी feelings को अपने तक रखता है। वो upset हो जाता है if things keeps on going in. वो अपने emotions को express नहीं करता, and you don't try to even argue. आप कहते हैं छठो पर है, जो हुआ सो हुआ, you don't care much about it, जिसकी वजह से आपको stress या anger हो सकता है। Are you one of those people? This is the last one, commander. I can't do one thing without thinking about other things that I have to do. I put myself before others. आप हमेशा दूसरों को पहले प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, और आपको होता है कि हर चीज मैं ही खुद करूँ। ठीक है, और वो बहुत जल्दी जल्दी में आपको हो रही होती है, आपको टाइम नहीं मिल रहा होता है, there's a lot of things that is going on, जिसकी वजह से it leads to anger and anxiety. All right, now you can share in the chat box कि आपकी कौन सी स्टाइल है इसमें। ठीक है, are you a hothead, are you a retreater, are you a con collector, or are you a commander? ठीक है, these are the 4 styles that I've shared. अगर कोई कंफर्टेबल है अपना स्टाइल शेयर करने में, तो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। Zobia said that she is a hothead. ठीक है, मतलब उनको लगता है बहुत ज्यादा, लाइक शी गेट्स वेरी एंग्री, और वो बस कहती है बस सब कुछ तोड़ फोड़ दूंगी मैं इस वक्त। Alright, then we have the server. He is saying that he's a commander. He likes to do everything on his own. Excellent. Thank you so much for sharing that. Miss Kashyap, आप भी बताएं आप कौन सा स्टाइल है आपका? Acorn collector. Acorn collector. Yeah. Perfect, perfect. You like to keep everything Yeah. within you. Yes. ठीक है। ऑलराइट, अरफा ने कहा है कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन ज्यादा गुस्सा जिद में आता है। ज्यादा गुस्सा जिद में आता है कि उसने मेरी ये बात नहीं मानी, अब मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, चाहे वो हमारे भले के लिए ही क्यों ना हो, बट मैं जिद में आकर गुस्सा करती हूँ और खुद को, मैं सरफा आप नुकसान पहुंचा। अच्छा अरफा, ये बड़ा ही जो है ना अनहेल्दी वे टू डील विद द एंगर। ठीक है, अगर एक इंसान ने आपकी बात नहीं सुनी है, तो इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ गुड एग्जांपल कि देखो मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ, यू आर ऑल्सो शोइंग हिम अ वेरी नेगेटिव इमेज ऑफ यू कि मैं भी नहीं सुनूंगी। वो अगर आपके भले के लिए भी कह रहे, तो यू आर पनिशिंग योर सेल्फ बिकॉज ऑफ अदर पर्सन बिहेवियर, विच इज नॉट हेल्दी, एंड इट इज नेवर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। प्लीज वर्क ऑन दिस हैबिट। जिद हमेशा इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा देती है। ठीक है, Arfmi Sarfa, if you want to share something, say something, you can do that. Meanwhile, I'll just continue with my presentation. All right, so let's talk about anger management. अच्छा, वैसे तो आई हैव डेफिनेटली, मैं आपको साथ साथ भी बता रही हूँ कि किस तरह से हमने एंगर को मैनेज करना है। ऑल राइट, सो एंगर मैनेजमेंट जो है ना, यहाँ पे हम थेरेपी की भी बात करेंगे, टेक्निक्स की भी बात करेंगे। Alright, to feel angry जब आपको गुस्सा आता है, that's not a problem, that's never a problem. Problem सिर्फ वहाँ पे start हो जाती है when you are not able to control your anger. The moment you feel like your anger has started controlling you, the moment you feel like your aggression has started controlling you, your anger has started controlling you, now it's a problem. Now it's time to seek therapy. Now it's time to look for the techniques कि मैं किस तरह से इसके ऊपर काम करूं। ठीक है, हमने कॉजेस की बात की, ट्रिगर्स की बात की, ठीक है, वो आपने आइडेंटिफाई करना ही करना है, दैट्स पार्ट ऑफ द थेरेपी। बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स योरसेल्फ। हम अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं पता कि हम किस तरह से अपने एंगर को पॉजिटिवली चैलेंज करें, अपने इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करें, एंड लास्टली कैसे कंट्रोल करें। ठीक है,
हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, कंट्रोल करना है, और हमने सीखना है कि हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्रेस इट इन अ हेल्दी मैनर, इन अ पॉजिटिव मैनर। अच्छा, वन मोर थिंग आई ऑल्सो वांट टू क्लियर कि थेरेपी में हम जब करते हैं एग्रेशन की, एंगर मैनेजमेंट हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पे आर गोल इज नॉट टू फिनिश द एग्रेशन। हम पूरी जिंदगी से एग्रेशन को, एंगर को खत्म नहीं करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम इसलिए यहाँ पे इस बारे में बात करें कि हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रोल इट and maybe reduce the symptoms, reduce the impact of our symptoms. If you get angry, that's a very natural emotion, जैसे मैंने बात की, तो एंगर होना एक हेल्दी चीज है, एक बड़ा पॉजिटिव अच्छा इमोशन है। इसको हमने खत्म नहीं करना है, बस हमने अपना रिएक्शन को कंट्रोल करना है कि हमने थोड़ी 5 मिनट बाद अगर हम रिएक्शन देते तो शायद थिंग्स वुड हैव डिफरेंट। तो बड़ा मैंने कॉमन लाइन सुनी है कि अगर हम सिर्फ 2 मिनट रुक जाते ना, तो शायद आज मेरे जिंदगी में इतने बड़े रिग्रेट्स ना होते जो मुझे अभी है। We need to give ourselves time to figure out what's going on, what is this thing happening in our mind, and then react accordingly. All right. Let's talk about the anger management therapy. ठीक है, anger management therapy is a way to address anger issues, identify your triggers, and then practice coping skills that will help you to restructure your mind. सबसे पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट टाइप्स ऑफ थेरेपी। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि किस किस किस्म की थेरेपीज होती हैं और इसमें हम क्या करते हैं। The first one is cognitive, बल्कि मैं साइकोडायनेमिक थेरेपी से स्टार्ट करती हूँ। The first one is psychodynamic therapy, ठीक है, जिसमें we let the individual examine their own self. आप खुद को एग्जामिन करें कि क्या हो रहा है, क्या आपको लगता है कि रीजन है आपके एग्रेशन की, क्या रूट कॉज है आपके एग्रेशन की। यू टेल मी एंड वी विल हेल्प टू सॉल्व जो अनरिजॉल्व ट्रॉमा या अनरिजॉल्व इशू है, जो अंडरलाइंग इमोशन है जो तंग कर रहा है आपको, हम उसको सॉल्व करेंगे। विच हेल्प्स इन करेक्टिंग द अनहेल्दी पैटर्न्स जो आपके बने हुए होते हैं, ठीक है, हम उसको एड्रेस करते हैं और थोड़ी सी आपकी कॉग्निशंस के ऊपर इस पे बात होती है। देन वी है फैमिली थेरेपी। ऑलराइट, क्योंकि फैमिली थेरेपी वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होती है जब आपको घर वालों के साथ बहुत इश्यूज होते हैं, घर में जो मसले चल रहे हैं, दैट इज द मेन रीजन फॉर योर एग्रेशन। आपस में फैमिली टर्म्स नहीं ठीक, बहन भाइयों की बहुत लड़ाइयाँ होती है, पेरेंट्स की बहुत लड़ाइयाँ होती है। तो यहाँ पे फैमिली को हम रिजेंटमेंट की तरफ लेके आते हैं, फैमिली को इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर यहाँ पे वर्क किया जाता है। Then we have dialectic behavior therapy. This is also the form of cognitive behavior therapy जिसकी मैं भी आपसे बात करती हूँ। And in DBT में we control chronic anger, ठीक है, जो बहुत ज्यादा severe anger होता है, जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। और यहाँ पे हम इमोशंस की उनकी बात करते हैं कि किस तरह से हमने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, किस तरह से हमने कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना है, किस तरह से हमने अपनी टॉलरेंस की जो स्किल्स है उसको बढ़ाना है। Then last but not the least, we have cognitive behavior therapy. That is one of the most common therapy जो बहुत ज़्यादा use होती है, जिसमें we talk about how can we understand our triggers, how can we work on the coping skills, और जो हमारी thinking patterns के ऊपर हमने इसमें बात करनी होती है। क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या उस सोच की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मेरी नेगेटिव सोच है, क्या मैं खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ। सो हमारा जो मेन फोकस होता है वो आपके कॉग्निशंस के ऊपर होता है, आपकी थिंकिंग के ऊपर होता है। एंड देन वी टेल यू अ पॉजिटिव रिफ्रेमिंग ऑफ योर माइंड, कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो तब आपके बिहेवियर के ऊपर क्या चेंज आता है। और ये सारी टेक्निक्स है जो इन्हीं थेरेपी में यूज होती है। साइंस खोलो साइंस। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स, ठीक है, जो मैंने आपको इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि हमने अंडरस्टैंड करना है क्या ट्रिगर्स है, क्या पास्ट ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, क्या हमारे अंडरलाइंग इमोशन है। देन वी हैव कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम चैलेंज करते हैं थिंकिंग पैटर्न्स को कि ये जो मैं सोच रहा हूँ क्या इसके पीछे क्या एविडेंस है, क्या ये रैशनल थिंकिंग है, क्या ये मेरी सोच लॉजिकल है, क्या ये कोई सेंस बना रहा है। वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर ओन थॉट्स, देन हम उसको चैलेंज करते हैं नेगेटिव वे में, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है, मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। हाँ ये, अच्छा, ये वही साइकिल है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ कि हम आपके पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रिगर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट आई वाज फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड बाय माय फ्रेंड, माय पार्टनर और माय कोवर्कर। तो क्या फीलिंग्स मुझे आना शुरू हुई, आई गॉट एंग्री, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आपको फिजिकल सिम्टम्स आने लग गए, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपको यू स्टार्टेड फीलिंग हॉट, ठीक है, हॉट फ्लैशेस आना शुरू हो गए, टेंशन शुरू हो गई।
ठीक है, बॉडीली क्या रिएक्शन है, रिस्पॉन्स क्या है, दिल कर रहा है किसी को मारो, उठा के चीजें उठा के फेंको, चीखें मारने लग जाए या वहां से निकल जाओ, ये आपका बॉडीली रिस्पॉन्स आ गया। थॉट्स क्या आने लगे कि ये सही नहीं हो रहा, इट्स वेरी रॉन्ग दैट आई एम बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब करने की। ये एक साइकिल है जो चलता है, ये नोन साइकिल है। इट इट हैज टू बी देयर एवरी टाइम यू गेट एंग्री, एंड हमने इसके बारे में बात करनी होती है कि हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर योर थॉट्स। अगर हम उस थॉट्स को चेंज करके देखें, सपोज मैं इसी को ही आपको बताती हूँ कि किस तरह से चेंज करेंगे। सिर्फ हमने थॉट्स को चेंज करना है कि आई हैव बीन डिसरिस्पेक्टेड। ये मैंने पहले भी बात की कि अगर मेरा फ्रेंड मुझसे बदतमीजी कर रहा है, तो मे बी उसके अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहे हो, मे बी उसकी कभी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की, तो उसको पता ही नहीं कि दूसरों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। मे बी दैट पर्सन नेवर हैड अ गुड फ्रेंड, तो ही डजंट नो हाउ टू टॉक टू मी, या वो को वर्कर है या आपका पार्टनर है, मे बी उसका आज बुरा दिन चल रहा है, मे बी इट्स नॉट अबाउट मी, आई शुड लेट इट गो। ठीक है, आई एम नो वन टू डिसाइड व्हाट्स फेयर एंड व्हाट्स नॉट फेयर, दैट अदर पर्सन इज नॉट इन माई कंट्रोल, but my own thoughts, my own reaction is in my control, and then you will see the whole cycle will change. You won't feel anger, you won't feel stress, maybe you feel calm, you feel relaxed। ठीक है, मे बी आप उससे बात करना चाहेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, डू यू वांट टू शेयर, इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू। ठीक है, एंड पूरा साइकिल हमारा चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग की जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है, आई वांट कि आप भी कोई इस तरह का मेरे साथ सिचुएशन शेयर करें और खुद ही उसको रीस्ट्रक्चर करके मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि जैसे अगर मुझे यहाँ पे मिस दुआ ने बात की कि आई फेल्ट कि समवन क्रिटिसाइजेस मी, या जब कोई मेरी बात नहीं सुनता, तो उस टाइम पे मिस दुआ इफ यू कैन शेयर कि क्या आपको थॉट्स आ रहे होते हैं, और अगर आप उन थॉट्स को चेंज करके देखें, पॉजिटिव थोड़ा सा सोचें कि मे बी अगर वो यही मेरी बात तो नहीं बता सुन रही रहा है। थी। मैम मुझे लगता है कि अगला बंदा मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, और हम्म क्रिटिसाइज जब मैं काम कर रही हूँ हर चीज़ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या तुम ठीक नहीं कर रही, तुम्हें करना हम्म नहीं आता, तो इस हम्म चीज़ पे। ठीक है, तो वो अगर आपको क्रिटिसाइज करे तो दैट इज एक्चुअली शोइंग अ लॉट अबाउट देम, मे बी इट्स देयर ओन वीकनेस जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करें, एंड देयर आर नो वन टू से कि आपके अंदर क्या कमी और क्या खूबी है। अगर हम इस तरह से सोचें, डू यू थिंक दैट्स गोना मेक यू फील गुड? मैम मैं उसको उस टाइम पे सोच लेती हूँ, किसी टाइम पे मैं उसको कोप कर लेती हूँ, और किसी टाइम मुझे गुस्सा आता रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है इसके साथ भी पहले यही सब कुछ हो चुका है, और अब ना ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और मुझे ये भी पता है कि कहाँ पे मेरी गलती है कहाँ पे नहीं हो, जहाँ मैं ठीक नहीं कर रही होती मेरी गलती होती है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ पे मैं सब कुछ करके और एंड पे मुझे बस ये कहें कि नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया और तुम्हें करना नहीं आ रहा, और तो फिर इसलिए मुझे फिर गुस्सा आ जाता है कि सारा कुछ करा के हर चीज़ अब खत्म हो गई है, टाइम भी हो गया, सारा कुछ लग गया, एनर्जी लगी, और अब एंड पे मुझे ये कहा जा रहा है। यहाँ पे यू नीड टू टेल कि अगर वो मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो क्या मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ? डू आई अप्रिशिएट माई सेल्फ? ओके। फर्स्ट वी नीड टू थिंक ना कि क्या मैं खुद को अप्रिशिएट कर रही हूँ, डू आई थिंक आई डिजर्व अप्रिसिएशन, एंड इफ आई थिंक दैट आई डिजर्व, तो व्हाई एम आई नॉट डूइंग दैट। सबसे पहले तो मुझे खुद को अप्रिशिएट करना है ना, फिर कोई और करे या ना करे शायद आपको फर्क ही ना पड़े उसके बाद। when you know that you have done something good and you are proud of yourself because of that, you won't need any other people's validation। मैम अगर मेरे सामने कोई और दूसरा वही काम कर रहा और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा होगा तो फिर तो मुझे हम्म ज्यादा बुरा लगेगा कि हाँ मुझे तो ये कहा गया और उसको कह रहे नहीं नहीं तुमने तो बड़ा अच्छा किया। यहाँ पे फिर आप ये देखें ना कि जो बंदा है वो फेयर है ही नहीं, वो बंदा जो इस तरह से कर रहा है वो फेयर ही नहीं है, वो जस्टिस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ओके। why are we going to change our behavior or our mood because of that person who doesn't even know how to be fair or how to treat everyone equally? ओके। Because the only thing is which is in our control is our own thoughts। तो अगर हम उसको पॉजिटिव में रखने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट जो कैफियत हम महसूस करते हैं गुस्सा होने के बाद या जो हमें स्ट्रेस होता है वो शायद थोड़ा कम हो जाए। ठीक इट है, अच्छा कैन बी। मिस, जी थैंक यू सो मच मिस दुआ।
मेरी स्लाइड्स चेंज हो रही है, समवन सेड कि स्लाइड चेंज नहीं हो रही। आई थिंक सो हो रही होगी। और so we're saying कि गुस्सा पी जाना भी एक है। इस कैफियत को क्या कहते हैं जब बंदा पूरा खामोश हो जाए? अच्छा, गुस्सा पीना तो सुन्नत भी है, ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गुस्सा पी जाना बड़ा सुन्नत का काम है, बड़ा सवाब का काम है, और उस बंदे का रुतबा भी बड़ा हाई है जो इस तरह का कर्ज है। गुस्सा कैसे पीते हैं आप? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये तो बड़ी एक हमारी साइंस भी ये कहती है, इस्लाम भी ये कहता है कि आप जो है ना पानी पी लें, ठीक है, वजू कर लें। हम तो ये कहते हैं वजू कर लें, साइंस कहती है कि आप शावर लें। दोनों का रोल एक ही है। पर्पस क्या होता है कि व्हेन यू एक्चुअली थ्रो वाटर ऑन योर फेस ऑन योर बॉडी, आपके जो मसल्स होते हैं, आपके जो सेल्स होते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। दैट अलाउज योर ब्रेन टू थिंक लॉजिकली। लेकिन इस कैफियत को क्या कहते हैं? अक्सर ऐसा होता है। आई डोंट नो इफ इट्स कैफियत, बट मैं तो यही कह रही हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप गुस्सा पी जाते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि आप उस गुस्से को किसी न किसी तरीके से चैनलाइज करें, उसको कहीं ना कहीं निकालें। किस तरह से आपने निकालना है? फिजिकल एक्टिविटी कर लें, लिखना स्टार्ट कर दें, वॉक पे चले जाएं। अगर कोई लेडी इस तरह की है तो वो मोस्टली क्या करती है, वो सफाइयाँ करना शुरू कर देती है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो बर्तन धोना शुरू कर देती है, एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी हेल्दी कोपिंग स्टाइल। आई विल नॉट से कि ये बुरी चीज़ है, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, स्पेशली जो मैरिड लड़कियां होती हैं, उनको मदर इन लॉ की किसी बात पे गुस्सा आ गया, नन ने कुछ कह दिया, घर में बच्चे हैं, अपना बच्चा ने तंग किया है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से गुस्सा निकाले, तो वो पूरे घर की सफाइयां करना शुरू करते हैं। एंड दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट आउट। आपने उसको चैलेंज किया घर की सफाई के ऊपर, आपने फिजिकल एक्टिविटी यूज की, आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया, तो यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। as long as you are able to control the reaction, I think we're good to go. All right, हमारा टाइम भी होता जा रहा है, लेट मी मैम जस्ट। मैम एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी। आई डोंट नो हाँ दिस जी, हाँ क्वेश्चन शुड बी दिस वेबिनार और नॉट। अक्सर बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा मतलब उनको एंगर इश्यूज होते हैं। मतलब इवन माय यंगर ब्रदर इज ऑफ 6 years and he has a lot of anger issues। मतलब वो जो बात उसकी ना मानी जा रही हो या वो किसी को समझा ना सक रहा हो अपनी बात, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम एक फील होता है ना कि मतलब बहुत एग्रेसिव हो रहा है बच्चा। तो वो उस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो हाउ टू हैंडल सच केस? अच्छा। अब बच्चे की अगर हम थेरेपी की बात करें ना मिस शोभे, तो वो एक इंटायरली डिफरेंट थेरेपी है। एंगर मैनेजमेंट बच्चों का बहुत डिफरेंट होता है, बच्चों का बड़ों का बहुत डिफरेंट होता है। इफ द चाइल्ड, आई डोंट नो हाउ ओल्ड, आप इस कितने एज फैक्टर की बात कर रही है, बट अगर बच्चे को गुस्सा है तो वो मोस्टली दैट बिहेवियर हैज बीन मॉडलाइज। उसने वो कहीं ना कहीं देखा है, या तो पेरेंट्स में से कोई एक बहुत गुस्से वाला है, फैमिली में कोई गुस्से वाला है, टीचर बहुत गुस्से वाली है, देयर हैज टू बी समवन जो वो सीख रहा है। तो यहाँ पे उसका इन्वायरमेंट चेक करने की जरूरत है। सेकंड चीज, अगर बच्चा स्क्रीन टाइम कर रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, या अगर वो बहुत ज्यादा तो इस तरह की वीडियोस देख रहा है जहाँ पे एग्रेशन है, उस चीज को कम करने की जरूरत है। तीसरी चीज, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी रखें, उसको क्रिकेट खिलाएं, उसको फुटबॉल खिलाएं, उसको भगाएं दौड़े। क्योंकि अगर वो बच्चे जो फिजिकली एक्टिव नहीं है और कोई और फैक्टर भी नहीं है उनकी लाइफ में, फिर भी वो एग्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि एंगर मैंने जैसे आपको बताया एक बड़ा अच्छा इमोशन है, ठीक है। अगर आप उसको बच्चे अगर वो इस इमोशन को अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो किसी नेगेटिव चीज में निकलेगा। फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द वे जो अगर उसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है, एग्रेशन में भी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है। दोनों के टाइम पे आपका जो ब्रेन है वो सेम चीज रिसीव कर रहा होता है, सेम सिग्नल्स रिसीव कर रहा होता है। ये फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। जो बच्चा फिजिकली एक्टिव होगा ना, आप खुद नोट कीजिएगा उसका एग्रेसिव वो कम होगा। और जितना उसका फिजिकल एक्टिविटी कम होगी उतना ज्यादा वो एग्रेसिव होगा, वो बहुत नेगेटिव मतलब तरीके से ही इज होगा। मॉडरेटली एक्टिव। मतलब इतना ज्यादा तो आपको पता है जो बच्चों की रूटीन होती है स्कूल और ट्यूशन और कार्य वगैरह से, बाकी जो टाइम बचता है ही इज फिजिकली एक्टिव मतलब माशाल्लाह। लेकिन फिर भी हम्म। उसके अंदर ये एग्रेसिव नेचर काफी ज्यादा है। तो यू शुड बी रिकमेंड दिस कि मतलब हम लोग उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें जितनी है उससे ज्यादा करते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी उसकी ज्यादा करें, आप उसकी डाइट ठीक करें, आप उसका स्क्रीन टाइम कम करें, आप उसे कम्युनिकेट ओके। करें। देर मस्ट बी सम अंडरलाइंग इमोशन। उसको किसी, या तो वो स्कूल में कोई बात इस तरह की सुन रहा है जो उसको गुस्सा आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स तो ऐसे नहीं करने देते मुझे,
या हमारे घर में तो ये चीज नहीं होती है, तुम्हारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में तो ये नहीं होता। वो कंपैरिजन आ गया, इंफीरियोरिटी आ गई, गिल्ट आ गया, अब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो वो एग्रेशन में निकलता है। टॉक टू द चाइल्ड, Okay. व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या प्रॉब्लम है, Okay. क्या Thank you कमी so है। much for guidance. हाँ, चलो, यू मोस्ट वेलकम। मिस शाहिनी सिंह, क्या बच्चों के लिए सीबीटी यूज हो सकती है या कोई और थेरेपी यूज होती है? सीबीटी बच्चों पे बिल्कुल यूज होती है। यू टॉक टू द चाइल्ड, यू आस्क द चाइल्ड व्हाट आर योर थॉट्स, उसको सीबीटी का कॉन्सेप्ट बताया जाता है और बिल्कुल यूज होती है। ऑलराइट, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है? जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट। अच्छा, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। ये छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लेट्स जस्ट डू दैट। लेट्स ऑल काम आवरसेल्फ, ठीक है? एंड ये एक्सरसाइज आप बच्चों पे भी करा सकते हैं, बड़ों पे भी करा सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्सेशन जब आप कर रहे होते हैं, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, वो लॉजिकल सोचना स्टार्ट कर देता है। ये एक ब्रेन, जब हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं या रिलैक्स करते हैं, तो हम बेसिकली अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसका बहुत ज्यादा रोल है। सो लेट्स जस्ट डू दैट। ऑलराइट, आई होप यू ऑल वर डूइंग इट बिकॉज आई वाज डूइंग इट एंड नाउ आई एम फीलिंग, मैं तो वापस फ्रेश हो गई हूँ। एंड इफ यू वर डूइंग इट, सो आई होप दैट यू ऑल फेल्ट गुड। थैंक यू सो मच। Alright, let's talk about the communication skills. अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है. It's important to know that how are we communicating with other people when we are feeling angry. The first one is using I statements. ठीक है, किसी और को ब्लेम करने के बजाय कि तुम मेरी कभी बात नहीं सुनते हो, या जब तुम इस तरह से करते हो तो मुझे गुस्सा आता है. Try to say कि मैं इस तरह से फील कर रहा हूँ, तो am I wrong or right? क्या मैं जो फील कर रहा हूँ वो सही है? What do you think? That's how you communicate, because it's never about what the other person is doing or feeling. It's about how are you perceiving it. आप कैसे फील कर रहे हैं? हम हमेशा ये, मैं अगर किसी भी पूछ रहे कि गुस्सा आपको क्यों आ रहा है, तो फलां ने ये किया, तो फलां ने ये किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है. No, you tell me, what do you do? How do you react and how do you perceive? Then we have active listening. Try to listen to the other person's perspective. वो क्या कहना चाह रहा है, पहले उसकी तो बात सुन लें. जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो ट्राई करें कि आप उसके साथ आई कांटेक्ट बना के रखें, उसकी बात को सुनें, नॉड करें जब वो आपकी बात सुन रहा है. एंड व्हेन इज डन, देन स्पीक अप. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इंटरप्ट कर लेते हैं, नहीं पहले मेरी बात सुनो, नहीं तुम पहले मेरी बात सुनो, एंड देन वी स्टार्ट फाइटिंग. All right, then we have to stay calm and we have to control our tone. It's very important कि हम अपने टोन के ऊपर कंट्रोल रखें. वही सेम बात अगर आहिस्ता आवाज में हो जाए, अगर वो धीमी आवाज में आप किसी से बात कर लें, तो शायद सिचुएशन कभी इतनी खराब ना हो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग कि तुम क्यों ऐसा हमेशा करते हो या तुम्हारी हमेशा गलती होती है, ट्राई टू से कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं हमेशा, या इसके पीछे क्या और वजह हो सकती है. अवॉइड एब्सोल्यूट्स. हम क्या करते हैं कि हमेशा ये कहते हैं कि तुम हमेशा लेट आते हो या तुम हमेशा इस तरह से बिहेव करते हो. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन से कि मैंने ये काफी टाइम से मैं नोट कर रही हूँ कि आप लेट आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है. यू सी कितना फॉरन चेंज आ गया, कि पहले मैंने ये कहा कि तुम हमेशा लेट आते हो, एंड लेटर ऑन आई सेड कि मैं काफी टाइम से नोट कर रही हूँ आप लेट आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है.
The other person will never get angry at you if that's how you're going to talk. Take a pause. अच्छा, ये बहुत ही छोटी छोटी मैंने आपको स्किल्स बताई है और ये इतनी इफेक्टिव है ना, you won't believe it. You have to try, try these things. जब आपको लगे ना कि गुस्सा आपको आना शुरू हो गया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाए रिस्पॉन्ड करने से पहले, छोटी सी आप ब्रेक लेंगे ना, दैट विल क्लियर अप योर माइंड। एंड कुछ आप ऐसा नहीं कहेंगे जो आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाए। आप उसको कहेंगे मुझे सिर्फ 2 मिनट देना, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, या मैं पानी लेके आ रही हूँ, या मैं किचन में एक चीज देख कर आ रही हूँ, बस। और जब आप वापस आएंगे ना, दैट सिचुएशन विल नॉट बी द सेम, आई कैन गारंटी यू दैट। खुद को भी ब्रेक हो जाएगी, अगले बंदे को भी ब्रेक मिल जाएगी। एंड एक्सप्रेस योर नीड्स क्लियरली, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग व्हाट यू डोंट वांट, ट्राई टू टॉक अबाउट व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड फ्रॉम द अदर पर्सन। हम क्या कहते हैं कि तुम मुझे ना इग्नोर ना किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम मुझे इग्नोर करते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, आप उसको ये बोले कि मैंने तुमसे क्लियरली बात करनी, जो वो कर रहा है ना, लेकिन वो नहीं कर रहा, हम उसके बारे में बात करते थे। तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझसे बात नहीं करते हो। हमने क्या कहना है, आई नीड टू टॉक अबाउट अस, आई नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन अस। ठीक है, ये थोड़ी सी कम्युनिकेशन मैंने आपको इफेक्टिव स्किल्स बताई है, जो शॉर्ट शॉर्ट टिप्स हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, वही ये सारी बातें हैं। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें, जब आइडेंटिफाई होते हैं सॉल्यूशंस की तरफ आए, इवैल्यूएट करें क्या क्या ऑप्शंस हो सकती है। जो गोल्स बना रहे हैं वो रियलिस्टिक गोल्स बनाए, और उन्हीं गोल्स पे एक्शन भी ले। हम क्या करते हैं, गोल्स बना लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं उस पर ले पाते, जिसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। एंड देन ट्राई टू रिफ्लेक्ट कि मैंने जो बात की है या मेरी जो भी आज कम्युनिकेशन हुई है वो किस तरह की थी और वो कैसे अच्छी हो सकती है, और फिर नेक्स्ट टाइम उस पर इम्प्रूवमेंट लेके, चेंज लेकर। All right, then this is another very effective technique. It's called stop technique. Stop, वही pause before reacting to a situation. Take a breath, breathe deeply to calm down your mind. Observe करें what's happening around me. मेरे इर्द गिर्द कौन है। हम गुस्से में ये भी भूल जाते कि मेरे इर्द गिर्द कौन है, कोई बड़ा बैठा हुआ है, कोई छोटा बैठा हुआ है, किसके सामने मुझे क्या बात करनी है। थिंक अबाउट योर ऑप्शंस बिफोर एक्टिंग आउट, कि मैं जो कर रहा हूँ इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या ये मुझे करना चाहिए। एंड देन प्रोसीड विद अ माइंडफुल कंसिडर्ड रिस्पॉन्स। दिस इज एंगर जर्नल वर्कशीट। ये बेसिकली सीबीटी की वर्कशीट है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें, क्या हुआ, आपके इनिशियल रिएक्शंस क्या थे, व्हाट वाज योर थॉट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, आपने किस तरह से रिस्पॉन्स किया, क्या चीजें आप बेहतर कर सकते थे, क्या आपके अंडरलाइंग इमोशन थे, उसको आइडेंटिफाई करें, और क्या कोपिंग स्ट्रैटेजी आपने यूज की है या हो सकेगी फॉर द नेक्स्ट टाइम। Alright, 3 benefits मैं आपको बता देती हूँ फॉर द एंगर मैनेजमेंट। इट्स डेफिनेटली हेल्प यू टू कंट्रोल योर एंगर। ठीक है, जो नुकसानदेह आपको एंगर होता है उसको वो कम करने में हेल्प करता है। जब भी आपका दिल चाहे अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, वंस यू हैव लर्न दीज स्किल्स, और उस गुस्सा को अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो खत्म नहीं हो सकता, उसके सिम्टम्स कम हो सकते हैं, और वो एक बड़े अच्छे और पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप जर्नलिंग करें, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं है बात करने को, आप स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, उसको लिखना स्टार्ट करें। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, एंड whatever questions you have, we can proceed now. Thank you so much, Ms. Akram. This was a very, very, very thorough workshop, very helpful. If anybody has Thank any you. questions, please मैम ask. मेरा एक सवाल है आपसे। Sure. If you have questions, you can either unmute your mic and talk, or you can put them in the chat. Yes, Ms. Rizwana, please go on. जी मैम, आपने जो भी एक टेक्निक करवाई कैंडल और फ्लावर वाली, तो उसमें हम फ्लावर की जगह कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे बारिश का साउंड हो गया या वाटर या कोई भी ऐसी चीज, उसको हम इनहेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जो आपको फ्लावर और कैंडल की ये बताई है, दरअसल ये एक, व्हेन यू आर इनहेलिंग, इट्स लाइक यू आर स्मेलिंग एनीथिंग, इट कुड बी अ रेन, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, एंड व्हेन यू आर एक्सहेलिंग, यू हैव टू ब्लो आउट। ठीक है, फेस को राउंड करके यू हैव टू ब्लो इट आउट।
It could be a candle, it could be a flower, it could be a cloth. It's just in your mind कि आप उसको किस तरह से effective बना रहे हैं. It could be a sound of a rain, whatever calms your mind. Okay, ma'am. Thank you. Also, Miss Afra, there are 10 minutes left in this meeting. So if anybody Hmm. has any questions, we have 10 minutes. So in those 10 minutes, you can do that. I had a question. आपने भी बताया था कि आप लोग को जगह छोड़ दिया करें या फिर आप 2 मिनट का ब्रेक ले लिया करें या फिर आप लोग मतलब साइड पे वगैरह करें उस चीज पे. तो आई वांटेड टू आस्क कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनसे हम लोग बैक स्टेप नहीं ले सकते हैं. और वो पॉइंट ऐसा होता है कि मतलब आप सुनने की लाजमी बातें कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं जो चीज आपको इफेक्ट कर रही है. और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आप सडनली रिस्पॉन्स इसी वजह से कर देते हैं बिकॉज आप लोग बैक स्टेप नहीं ले सकते होते हैं. तो व्हाट टू डू इन दो सिचुएशंस. फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स हैं और वो बात कर रहे हैं, वो डांट रहे हैं किसी बात है, तो यू कांट टेक बैक स्टेप. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब मैं 2 मिनट में आया या मैं अभी आया या कुछ भी मतलब इस तरह का आप जा नहीं सकते हैं वहां से. आप वहां से मूव नहीं कर सकते. तो हाउ टू डील विद इट. अच्छा, ठीक है. वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन. स्पेशली जब पेरेंट्स आपके साथ बैठे हो और आप उठ के चले जाए तो वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है. यहाँ पे आई एक्चुअली टेल यू, अपने हैंड पे फिस्ट बना के जस्ट मेक अ फिस्ट ऑफ योर हैंड एंड होल्ड योर थंब इनसाइड. एंड जब तक वो सिचुएशन खत्म नहीं होती है यू कैन कीप ऑन प्रेसिंग योर थंब विद इन योर हैंड. बिकॉज यहाँ से आप मूव नहीं कर सकते हो. वो जो बातें करें दैट्स कॉजिंग योर ट्रिगर. वंस यू डू दैट, जब आपका थंब आपके फेस में दब रहा होगा तो आपको थोड़ी पेन, जब वो पेन फील होगी तो आपका माइंड फौरन उस पेन की तरफ जाएगा. आपके पेन के सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे और आप गुस्से की तरफ आपका फोकस हट जाएगा. दैट्स वन ऑफ द वे यू कैन डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Anyone और यू else? कैन ऑल्सो जस्ट बी लाइक कि मैंने पानी पीने जाना है, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं आपके लिए पानी ले आऊं. थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें सिचुएशन को. ओके, दैट्स ऑल राइट. थैंक यू. Anybody else? Mr. Tasawwur ने chat में लिखा है मिस. हाँ जी, लेट मी सी. हमारे हमारे इस असातिज़ा. कहते थे, इस्ताज़ा कहते थे 15 सेकेंड इंतजार करो, जवाब ना दो, लेकिन 3 सेकेंड भी इंतजार नहीं होता. Obviously यहाँ पे you need to learn a lot of tolerance skills की यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि आपका टॉलरेंस लेवल बहुत थोड़ा है. उसको कैसे बढ़ाया जाए कि आप आइडेंटिफाई करें कि क्या आपके, आई एम श्योर मल्टीपल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है. उन मल्टीपल इश्यूज को वन बाय वन बात करें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें. और आपके उस्ताजा ने बहुत ही बेहतरीन बात की कि 15 सेकेंड सिर्फ अपने लाइफ के, अगर आप 15 सेकेंड खुद को नहीं दे सकते देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क हेल्दी आउट फॉर यू. लाइफ के 15 सेकेंड अगर आप खुद को दे देंगे ना उस टाइम पर, योर लाइफ विल बिकम लॉट बेटर. और वो सिचुएशन में कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको रिग्रेट हो. मैम, एंगर के वक्त कहाँ कुछ समझ आता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन अगर हो जाता है तो क्या करें. अच्छा, ये एक आपकी बड़ी मिस्टेक है कि आपको लग रहा है कि एंगर के टाइम पे कुछ समझ नहीं आता है. ऐसा नहीं होता. एंगर के टाइम पे आपको बिल्कुल समझ आ रहा होता है, हर चीज समझ आ रही होती है. वी आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. एंगर भी बाकी इमोशंस की तरह ही है. जब हमें भूख लग रही होती है, जब हमें प्यास लग रही होती है, जब हम खुश होते हैं, जब हमें किसी से प्यार होता है, तब भी वही इमोशंस आते हैं, वही फीलिंग्स होती है जो एग्रेशन के दौरान होती है. तो इट्स नॉट राइट थिंग टू से कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता. बिल्कुल हमें समझ आ रहा होता है. वी चूज नॉट टू लिसन टू आवर माइंड एंड वी चूज टू रिएक्ट. तो उस रिएक्शन को हमने ही कंट्रोल करना है. ऑल राइट, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? आपने भी टॉलरेंस लेवल की बात की है. तो अगर हम किसी की गलत बात पर या अगर वो लोग गलत बात कर रहे हैं या किसी गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और उस बात पे अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो उसमें भी हमारे टॉलरेंस लेवल का प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पर एक चीज गलत हो रही है इस वजह से एंगर इशू हो रहे हैं. कुछ ऐसा भी होता है कि आप लोगों को कुछ अगर गलत चीज देखें तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा. ठीक है, वो आपकी एक अच्छी क्वालिटी है कि हमें कुछ बुरा हो रहा होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है, ऐसे यही बात कर रही है, इस तरह से होता है. जी जी, मैं यही बात कर रही हूँ. हाँ, ठीक है.
यहाँ पे आप ये देखिए ना कि अल्लाह ताला दिल का हाल जानता है, अल्लाह ताला आपकी नीयत भी जानता है। जहाँ पे आपको लगे कि मेरा गुस्सा करना सही नहीं है और यहाँ पे शायद गुस्से से आपकी बात नहीं आवाज चल क्लियर रही, नहीं है बिल्कुल भी। देखिए मेरे दिल में उसके लिए दुआ। अच्छा, सो आई वाज सेइंग कि आपका दिल का हाल जो है ना, आप अल्लाह ताला जानते हैं। सो इस सिचुएशन में आप दिल में उसके लिए दुआ करें और जस्टिस के लिए दुआ करें, अच्छाई के लिए दुआ करें। हर जगह अच्छा होना या हर जगह अच्छाई दिखाना कभी हमें खुद को भी नुकसान दे देती है। तो इस सिचुएशन में इट्स बेटर टू जस्ट प्रे फॉर द अदर पर्सन एंड मे बी जस्ट लेट थिंग्स गो। अच्छा, मैं सरप्राइज सेइंग, मुझे जब गुस्सा आता है मेरा दिल करता है वहां से चली जाऊं और उसी जगह जाऊं जहां मुझे कोई जानता ना हो, अजनबी हो, या फिर मैं रूम को लॉक कर देती हूँ। घर में अगर कुछ लड़ाई हो जाए तो दिल करता है घर छोड़कर चले जाऊं, वैसे में मेरा दिल नहीं लगता उस जगह पर। मैं इसको खत्म करने के लिए क्या करूँ? तो जब आपको गुस्सा आता है तो आपका दिल करता है जहाँ मुझे कोई जानता ना हो, अजनबी हो, मैं रूम में लॉक कर देती हूँ। आपका सवाल क्या है? मेरा दिल नहीं लगता उस जगह पर, मैं इसको खत्म करने के लिए क्या करूं? घर छोड़कर चले जाऊं। अच्छा, आपका घर में दिल नहीं लग रहा, इज दैट राइट? इज दैट व्हाट यू सेइंग मिस? आपका घर में दिल नहीं लग रहा, घर में लड़ाइयाँ होती हैं इस वजह से। तो सब सेइंग जो कहते हैं गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो आदमी पर निकाल कर दिखाएं। अच्छा जी। अच्छा मिस अरफा, ये तो आपका वही बात है, यहाँ पे ट्रॉमा ज्यादा है, एग्रेशन कम है। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉमा के ऊपर बात करने की ज्यादा जरूरत है रादर देन एग्रेशन। आपकी अंडरलाइंग इमोशन है, अनरिजॉल्व इमोशन है, उसके ऊपर बात करने की ज्यादा जरूरत है रादर देन एग्रेशन। शाइनी सिंह मैम, टू मच थॉट से नींद उड़ जाती है, उसके लिए क्या करें? ओवर थिंकिंग आपका इशू है, ठीक है। आप ट्राई टू राइट इट डाउन, जर्नलिंग करना स्टार्ट करें। जब आप लिख रही होंगी तो जस्ट टेल योरसेल्फ कि मैंने अब इनको लिख दिया है, अब इट्स आउट ऑफ माय सिस्टम, मैं अब इस चीज के बारे में कल सोचूंगी, आज रात गुजार लेती हूँ, कल सोचूंगी। ट्राई टू टू डू दैट। So thank you so much, everybody that attended. It was a very, very productive session. Thank you so much, Ms. Afra. It was very good and it was very helpful. Thank you so much for coming, everyone. And we'll just wrap it up here. And I hope you can attend more webinars with us in the future. Thank you, Ms. Afra. Thank you so much. It was excellent and I also enjoyed it. And thank you to all the participants who joined, and thank you for your questions. And keep following Amen Mental Health Foundation. We do have lots of more workshops coming up. Inshallah, I'll see you all in the next workshop. Thank you so much. Allah Hafiz. See you in the next one. Allah Hafiz, everybody.